सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लेक्चर नंबर 141 में हम हमारा जो चैप्टर 7 लर्न करेंगे रूबिन्सन क्रूसो। ओके, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सर आपको इसमें स्क्रीन में दिखाएंगे। तो लेट्स लर्न नाउ। सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ऑनलाइन इंग्लिश स्पेशल वीडियो लेक्चर। एंड टुडे वी आर इन दिस लेक्चर नंबर 141। आज हम लेक्चर नंबर 141 में आ गया एंड दिस इज़ द लेक्चर फॉर क्लास 3rd स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के। तो ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, तो 7 चैप्टर है एंड 7 चैप्टर का नाम क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो। ओके, तो इस लेक्चर में हम थोड़ा बहुत रीडिंग्स प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर का थोड़ा बहुत। इसके अंदर का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जैसे कि ग्रामर है एंड वोकैबुलरी सेंटेंस मेकिंग वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर के थ्रू सिखाया था। अभी हम इस लेसन में क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम 7 चैप्टर का रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, सर के साथ साथ रीडिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। सो सर के साथ साथ आप रीड कर लेना, एकदम आराम से ध्यान से देख लो, स्क्रीन में देख के आपको आराम से पता चल रहा होगा ना। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by sea. He lived alone for many years on an island and longed for company. One day, he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. Now let's come to the next page. हम next page में आ जाएंगे. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. And so I lay frightened for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out.
But even now, as I went forward, I looked behind frequently because I was still very frightened. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी जो रीड किया था दैट वाज ए ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट ए पर्सन के. सो आपको अभी क्या करना है इन दिस लेक्चर, इन दिस स्टोरी में से जितना भी नया नया वर्ड्स आपको लर्न करने के लिए मिला है तो आपको क्या करना है, जस्ट अंडरलाइन करना है एंड उसकी जो स्पेलिंग्स एंड उसका मीनिंग यू हैव टू जस्ट राइट एंड लर्न इन योर ओन वे. आपको नोटबुक में लिख के लिखे स्पेलिंग भी और उसका मीनिंग भी लर्न करना है. ठीक है, तो आप एक बार जस्ट देख लो इसमें की वर्ड्स क्या दिया गया है. 4 to 5 वर्ड्स नया नया है इधर. अमेज्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमेज्ड? वेरी सरप्राइज्ड. अमेज्ड का मीनिंग है वेरी सरप्राइज, सरप्राइज हो गया. फ्राइटन्ड मतलब फीलिंग फियर, मतलब डर लगता है, डर लग गया, फ्राइटन्ड. एंड कैसल मतलब ए लार्ज बिल्डिंग विथ हाई वॉल्स that was built in the past to live in and to defend people from attack. कासल मतलब एक जैसा बिल्डिंग है उसके चारों तरफ बहुत बड़ा सा लंबा हाइट में दीवार होता है. ठीक है, तो वहाँ दुश्मन से बचने के लिए या तो उनको अटैक करने, उनके अटैक से बचने के लिए हम उसमें लोग रहते थे. तो ऐसे टाइप ऑफ घर को कहता है कैसल. चेस, चेस मीन्स टू रन आफ्टर समथिंग, किसी न किसी चीज़ के पीछे भागता है तो उसको चेस कहता है. एंड लैडर, लैडर मीन्स ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप समथिंग. लैडर मतलब कुछ ना कुछ चीज़ लेने के लिए हम ऊपर चढ़ते हैं ना, तो चढ़ने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको लैडर कहता है. सावेज, ए क्रूअल एंड वायलेंट पर्सन, मतलब एक क्रूर आदमी को कहता है सावेज. ठीक, सो इसका मीनिंग आप नोटबुक में लिखो एंड लर्न भी कर लेना. ठीक है, एंड ट्रू फॉल्स का एक छोटा सा एक्टिविटी दिया गया है. यू कैन जस्ट डू इट बाय योर सेल्फ. ओके, एंड मैच द फॉलोइंग में मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर एंटोनिम्स. के तो इधर ज़रा आपको एक बार चीज़ समझाता हूँ. एंड ये जो दो बॉक्स दिया गया इधर है ना, ए एंड बी, तो आपको मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर एंटोनिम्स इन बी. ठीक है, जो पार्ट ए में जो दिया गया है एक और ए में, उसका ऑपोजिट वर्ड्स बी में दिया गया है. ठीक है, उसका ऑपोजिट पार्ट इसमें दिया गया है. ठीक है, तो आपको उसको मैच करना है. तो उसका आंसर सर दे देता हूँ और ध्यान से मैच कर लेना. पार्ट, पार्ट मतलब आधा, उसका पूरा मतलब क्या होगा इधर, हॉल, WHOLE, हॉल, पार्ट हॉल. एंड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा बी में, रेयरली, RARELY, रेयरली. एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे जाना, फॉरवर्ड फ्रंट में. एंड इसका बैक ऑपोजिट क्या होगा, पीछे जाने का होता है बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड. एंड लकीली, लकीली का ऑपोजिट वर्ड है अनलकीली. आप मैच कर लो, unluckily, UNLUCKILY, unluckily. and behind, behind, behind मतलब पीछे, बैक साइड में behind. इसका ऑपोजिट क्या होगा, सामने. in front of, in front of, INFRONTOF, in front of. and the sixth one, inside, inside मतलब अंदर, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, बाहर, outside, OUTSIDE, outside. Okay? Inside, outside. Okay? So
बच्चों आपको क्या करना है, इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है, जो हमने एक बार स्टोरी रीड किया है एंड उसके बाद जो है ये जो मैच द फॉलोइंग में ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स आपको आराम से आपकी नोटबुक में लिखना है एंड उसके कोई भी 5 वर्ड्स, चाहे ए पार्ट में से या तो बी पार्ट में से आप ले लो, उसका एक सेंटेंस आपको खुद से बनाना है, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस सर आपको दिया था, लेकिन इसमें से आपको कोई भी 5 वर्ड्स चूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारे एक्टिविटी इस चैप्टर में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही सर आपको इधर दे रहा हूँ। तो 4th एक्टिविटी यू कैन सी हियर, आप आराम से रीड करके एंजॉय कर सकते हो पोएम, ओके। तो आप लर्न करते रहो एंड ये प्रैक्टिस करते रहो एंड रीडिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू रीड मोर एंड मोर, ओके। तो लर्न करते रहो, सेफ रहो घर पे, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।